جو چیز ہم خود نہیں کر سکتے وہ کام دوسرے کیسے کریں. اس کے لیے ضروری ہے کلیکٹیو ایکشن جس میں دونوں حکومت اور شہریوں کو بہت بڑا ہاتھ ہے. حکومت ذمہ دار ہے تقریباً 7 ٹریلین روپے ہم سب سے جمع کرنے اور خرچ کرنے کے لیے. نہ صرف یہ بلکہ یہ حکومتی نظام ہمارے آپس کے روش کو بھی اسٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے. جب تک اس نظام میں بہتری نہیں آئے گی اور جب تک شہری اس چیز کو آگے نہیں بڑھائیں گے تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ سب تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ As a nation, we have to move away from loans, RFPs, and making budgets for spending money, to setting goals and achieving them with limited resources. This will require jiddat in terms of process, procurement, and execution, and also hard work. We have to repeatedly ask why, aisa kyun hota hai, and make things better day after day, week after week, month after month. The second important thing is greater autonomy. This should filter down all the way from federal government to provinces, to cities and villages, and to individuals. We should learn to trust the leaders of our organizations. We should allow them to deliver on their goals and hold them accountable and replace them when they don't. Trying to control them through centralization and complex processes is a recipe for failure, and this is the exact collective failure we face today. Startups or small businesses ایک بہترین ذریعہ ہیں عام شہری کو موقع دینے اور آگے بڑھنے کا. اس سے نوکریاں ملتی ہیں اور ہماری ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. اگر آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسمال بزنسز اور اسٹارٹ اپس کامیاب ہوں تو سب سے پہلے ہمیں ایک سمپلیفائڈ ٹیکس پروگرام کی ضرورت ہے. یہ پروگرام ان سب کمپنیز کے لیے ہو جن کا ریونیو 10 کروڑ سے کم ہے. اس ٹیکس پروگرام میں اسمال کمپنیز کو سیلز ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹس دیے جائیں اور وہ اپنے ریونیو پر 2% ٹیکس پے کریں. اس سے اکانومی ڈاکومنٹ ہوگی، گورنمنٹ کو ریونیو بھی آئے گا اور انٹرپرینورز بھی قانونی حیثیت سے آگے بڑھ سکیں گے. حکومت کے اداروں مثلاً سٹی گورنمنٹ کا آبجیکٹو صرف یہ ہو کہ ان بزنسز کی مدد کریں تاکہ وہ 10 کروڑ کے مائلسٹون کو جلد از جلد حاصل کریں اور ریگولر ٹیکس سسٹم میں شامل ہوں. مجھے یقین ہے کہ ہمارے جوان جدت، فیئرنیس اور گروتھ کے لیے تیار ہیں. میں نے یہ NIC پہ قریب سے دیکھا. نہ صرف NIC کی اسٹارٹ اپس بلکہ ملک کے انٹرپرینرز پر یقین ہے کہ جب ان کو حکومت کی طرف سے کلیئر ڈائریکشن اور وسائل ملیں گے تو وہ میری اور آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر ڈیولپ کریں گے. اگر ترقی چاہیے تو ہمیں ایک بار کا یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا ہے؟ بیسٹ وشز ٹو آل آور اسٹارٹ اپس. تھینک یو. I would now request Mr. Adif Rais Khan, CEO of LMKT, to share his thoughts with us on this occasion. Mohtaram Amin Sahab, thank you so much for taking the time out visiting us. Junaid Sahab, Jamal, his team, EB کی team. کراچی I think شاہجہاں نے جو بولا ہم جب بیٹھ کے پلان کر رہے تھے کہ یہ پروجیکٹ ہمیں کیوں کرنا چاہیے، میرے لیے یہ خاص امپورٹنس اس لیے رکھتا ہے کہ میں اس نیبرہڈ میں بڑا ہوا تھا. میرے والد بچپن میں کراچی یونیورسٹی میں رجسٹرار تھے تو یہ پورے نام کرتا. پھر میں نے آخر میں اپنی ماسٹرس ڈگری کراچی یونیورسٹی سے کی اور میں نے اس شہر کا روج دیکھا ہے اور زوال بھی دیکھا ہے. تو جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم انٹرپرینورس کو موقع دیں کہ شہر کی جتنے مسائل ہیں اس میں وہ حصہ لیں ہمارے ساتھ. اس میں کافی ہمیں چیلنجز آئے اور ہیں آگے، لیکن ڈیجیٹل پاکستان کا خواب ہم نے دیکھا تھا 20 سال پہلے جب میں نے LMKR اور LMKT یہاں پہ شروع کی. اس وقت ای گورنمنٹ سے لے کے اور باقی ٹرانسپورٹیشن کافی چیزوں میں ہم نے سب سے پہلے ہم نے آئل اینڈ گیس میں حصہ لیا. میرے بعد فیصل ایک 2 سلائڈز آپ کو بتائیں گے ہماری جو کنٹریبیوشن ٹورڈز پاکستان کی ڈیجیٹل اس میں ہے وہ کیا ہے. لیکن جو اسٹارٹ اپس کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ونس اپون اے ٹائم ہم بھی ایک اسٹارٹ اپ تھے. ہم نے بھی شروع کیا سفر پاکستان سے اور ہم نے ایک یونیک چیز ہم نے یہ کی کہ اس سفر میں ہم دنیا میں گئے. ہماری جو ہمارے یہاں سے بچے ٹرین ہوئے جو انجینئرس پیٹرولیم انجینئرس وہ اس وقت تقریباً 50 ملکوں میں موجود ہیں اور کوئی دنیا کی ہوائی کمپنی ایسی نہیں ہے جہاں پہ ہمارے یہاں سے پروفیشنل نہیں گیا اس وقت.
اور وہی ریولیوشن ہم چاہتے ہیں تقریباً ہر سبجیکٹ میں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم میں یہ کیپیسٹی ہے اور ہم میں یہ ٹیلنٹ ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. پاکستان بدل رہا ہے, تھوڑی مشکلیں آئیں گی آپ سب کو, اور مشکلیں کووڈ کی صورت میں بھی آئیں گی اور مشکلیں باقی بھی آئیں گی, لیکن میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ آپ پیشنٹلی پرسسٹنٹ رہیں. یہاں پہ سکسیس آتا ہے لیکن محنت سے آتا ہے. ہمیں وہ سکسیس ملا اگینسٹ آل آڈس, ہم نے وہ اچیو کیا. ہم ہمیشہ یہاں اویلیبل ہیں. میں ریئلی چاہوں گا کہ یہ سینٹر سب 5 سینٹر میں سب سے بیسٹ رہے. آپ ایک بہت عظیم یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں, NIT از ورلڈ کلاس سینٹر. یہاں سے بہت انٹرپرینورز نکلے, بہت بلینئرز بنائے ہیں اس یونیورسٹی نے, اینڈ آئی ہوپ اور بنائیں. سو ود دیٹ آئی ویلکم آل آف یو اینڈ آئی وش یو دا بیسٹ آف لک. اینڈ کوئی بھی چیز ہم آپ کی مدد کر سکیں اس کی گریجویشن کے بعد بھی آپ کی, آپ پلیز ہمارے دروازے ہمیشہ کھولیں. I'd like to personally get involved with anything I can do for you. اور پوری ہماری ٹیم اس کے لیے, میں اگنائٹ کی ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے بہت ساتھ دیا. NIC ٹیم نے بہت محنت کی ہے یہاں پہ اس کو یہاں تک پہنچانے میں. 2 سال کافی چیلنجز ہیں. سو تھینک یو فار. فیصل فیصل as a senior vice president, we run through at least 2 slides. اس جرنی میں کیسے پہنچے ہیں. السلام علیکم. ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈز ڈیجیٹل پاکستان انیشیٹو. تو جیسے عادل صاحب مینشن کہ the journey started 20 years ago, and it was through a project that the first project when challenge یہ تھا کہ پاکستان میں منسٹری آف پیٹرولیم کا جتنا بھی ڈیٹا تھا سنس انڈیپینڈنس وہ پیپر فارم میں مل چکا. ریلیبلٹی آرکائیو جو ویئر ہاؤسز میں شکل لگے ہوئے تھے. کوئی بھی کمپنی پاکستان میں آئل ایکسپلوریشن کے لیے گیس ایکسپلوریشن کے لیے آتی تھی تو اٹ واز اے ٹیڈیس پروسیس, اٹ واز اے پینفل پروسیس جس میں سارا ڈیٹا آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کا انالیسس کرنا اور پھر اس کی رپورٹ واپس سبمٹ کرنا. So an initiative with LMKR and then Ministry of Petroleum was undertaken to establish what we call a petrobank. اور اس طرح کے پیٹرو بینک اس وقت پوری دنیا میں 3 ہیں, ون ان پاکستان, ادر ان ناروے اینڈ ون ان برازیل. پیٹرو بینک کا پرپس کیا تھا؟ ڈیجیٹائز آل آئل اینڈ گیس پروڈکشن ڈیٹا آف دا کنٹری. سو دیٹس an initiative that we took and the system is still in use and we are very proud of it. Another recently inaugurated project that Mr. Imran Khan did was Data for Pakistan. So پورے پاکستان کا poverty map is now available online. So کوئی بھی آرگنائزیشن جیسے کہ ریسنٹلی احساس آرگنائزیشن نے اپنا پروگرام فائنینشیل ڈسکلوزر کے لیے یوز کیا تھا, دیٹ پورٹل واز یوزڈ ٹو ٹریک. Another project that's very close to us is e-office solution that we're very proud of because it automates the entire federal government. It's a sort of an ERP for federal government. جو ہم بات کرتے ہیں paperless environment کی, that project directly supports that initiative. And another very interesting project is that called میری زمین. So ہوتا کیا کہ ہماری اور انڈیا کی زمین کو زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن پر ایکڑ جی پہ بہت فرق ہے. انڈیا کی بہت زیادہ ہے ہم سے. کیوں؟ دیٹ بیکاز آف دیئر اڈاپشن آف ٹیکنالوجی. سو ایک فیلڈ ایجنٹ ہے, وہ کس کسان کے پاس جاتا ہے, سوائل کا سیمپل لیتا ہے, اس کے بعد کسی ڈسٹرکٹ کے لیب میں جاتا ہے, اس میں کوئی انالیسس ہوتا ہے, اور پھر وہ میل کے ذریعے پوسٹ ہوتا ہے اس کا رزلٹ کسان کو. جب تک وہ پہنچتا ہے نا, اس سے فصل کا سیزن ختم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ انفارمیشن آبسلیٹ ہو چکی ہے. So by using technology, so using mobile apps, by using sensor-based IoT devices and portable weather stations, we developed this project. اس کا پرپس ہے کہ کسان کو رائٹ انفارمیشن رائٹ ٹائم پہ اویلیبل. اور اب اس طرح کا سسٹم ان پلیس ہے, یو کین آل گو اینڈ ٹرائی اٹ. 0800 نمبر ہے جس پہ کسان کین ریچ آؤٹ ٹو ایگری ایکسپرٹ. یونیورسٹی آف فیصل آباد, یونیورسٹی آف بارانی, یونیورسٹی آف راولپنڈی کے ایکسپرٹس اویلیبل ہیں. اور جب کسان کو فون کرتا ہے نا, تو اس کسان کی ساری انفارمیشن از اویلیبل. اس کی زمین کہاں پہ ہے, اس کی کانکریٹ کیا ہے, ویدر پیٹرن کیا ہے, پیسٹیسائڈس کی کیا سچویشن ہے. سو جو ایڈوائس اس کو دے رہا ہے, دیٹس مور ریلیونٹ اینڈ مور ایکوریٹ. سو اس کے ریزلٹس already آنا شروع ہو گئے. This project rolled out 6 months back. 3 more projects I would like to mention. So Step Robotics is a startup that we initiated. So Government of Pakistan now encourages industries, commercials and residents کہ وہ solar solution لگائیں. اور پھر اس کے اندر net metering کی option ہے. Means کہ اگر آپ extra energy produce کر رہے ہیں, you can give it back to the grid.
लेकिन अगर आपने नेट मीटरिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल किया ना तो आपको अंदाजा हो गया इट्स अ वेरी टिकी प्रोसेस। तो 5-6 डिपार्टमेंट्स में जाता है, एनओसीज मिलते हैं, इवेंचुअली आपको ऑथराइजेशन मिलती है। टू स्टेप रिपोर्टिंग्स हमने ये प्रोसेस पूरा ऑटोमेट कर दिया। सो आपके सिर्फ वन स्टॉप एप्लीकेशन है, उसको आप फिल करेंगे, ऑल द अप्रूवल्स आर ऑनलाइन एंड अल्टीमेटली योर यूटिलिटी गेट्स नोटिफिकेशन कि इस सब्सक्राइबर को नेट मीटरिंग दे दी कर दी जाए। रिसेंटली हमने एक और इस पे काम किया, अगेन वर्किंग विद द गवर्नमेंट, बिल्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। So let's say you are a sugar mill and you want to automate your mill. You want to solar solution का लगाना चाह रहे हैं mill के ऊपर. So उसके लिए आपको financing चाहिए. To the same solution, you can submit the same application to the bank. वहाँ से आपको financing मिलेगी. Government की तरफ से आपको net metering का provision मिलेगा. And in a week's time you will get one of the very important projects, the last one that we are very proud of, was our transport-related initiatives. So we started in small capacity with Punjab Mass Transit Authority, with the Lahore Metro project and the Multan Metro project. But the real project was the recently launched Peshawar BRT project. We are responsible for the entire ITS, which is the Intelligent Transport System, plus AFC, which is the Automatic Fare Collection. It's state-of-the-art Generation 3 bus service, and we are very proud to be part of it. And last but not least, we are very proud of the fact that not only one, we run 2 incubation centers. One in the south of the country, NIC Karachi, other in the north of the country, NIC Peshawar. दोनों के अपने challenges और अपने dynamics हैं, but very interesting facts, and I believe the numbers speak for themselves. Very thankful to the Ignite team for all the support they have provided us and to enable us to run these programs. दोनों centers ने अपने recently 2 साल पूरे किए हैं, and we are very excited about it. अभी मैं जवाब को बता रहा था कि last week UN reached out to us. So UN is rolling out a program in DP जहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी है कि जो और इंक्यूबेशन सेंटर्स चल रहे हैं उनको they should reconsider and sign an MOU with NIC Peshawar so that they should follow what the practices we are following. So I think that speaks volumes about the kind of work that we do. So this is it. I am available. If anyone has any questions, please feel free to ask. Thank you, Faisal Saab, and thank you, Adi Saab. Our funding body, Ignite, and its members, Mr. Jawad, Mr. Asfandyar, Mr. Umar Ikram, Major Nadeem Nasir, all of you have been a source of constant support and guidance. And we are very grateful for the countless opportunities that Ignite regularly provides for our startups. I would now request the CEO of Ignite, Mr. Junaid Imam, to please come on the stage for his kind remarks. Team, members from LLT University, Ignite team, and students and graduating students. Assalamualaikum. Always gives me immense pleasure जब मैं startup की किसी भी graduation की ceremony में आता हूँ. उसकी वजह ये कि I personally startups को बहुत ही special समझता हूँ क्योंकि आप लोगों ने decision लिया कि आपने एक मुश्किल path लेना है for career progression. It's a difficult path कि आप आइडियाज़ को इनोवेशन और प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएं. इसमें चैलेंजेस भी होते हैं, तो इन चैलेंजेस को देखते हुए जॉब करना आसान है. तो हमारी विशेष भी आपके साथ हैं और इसके साथ साथ आपको भी मुबारकबाद. और इसके अलावा जो दूसरे कोर्स हैं या जो दूसरे स्टार्टअप्स हैं who could not make it to this point, उनकी भी एफर्ट बहुत ज़्यादा है और हमें उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि सक्सेस नहीं हुई विद द सेइंग कि या आप कामयाब होते हैं या आप सीखते हैं. सो फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाती है. सो वो जो स्टार्टअप्स अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं दे शुड कीप इट अप. स्काई इज़ द लिमिट. और जो उनके लेसन्स लर्न उसको सीख के वो आगे चलें और इंशाल्लाह सक्सेस उनके साथ होगी. मैं एक छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ जनरली कि when I did my final year project, fortunately मुझे एक opportunity मिल गई उसको किसी कस्टमर को सेल करने की. देखो तब डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल आके 25 years back. तो मैंने वो प्रोडक्ट बना के उनको दी, उन्होंने उसको यूज़ भी किया. लेकिन बीइंग एन इंजीनियर मुझे ये सेंस नहीं थी कि मैं अपने इस जो मैंने प्रोडक्ट बनाई इसको किस तरह मार्केट करूँ, मैं इन्वेस्टर्स को किस तरह बेच करूँ.
I spent 6-8 months on this, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं हुई और eventually I ended up in a job. So जो स्टार्टअप्स को ये NIC का प्लेटफॉर्म मिला है, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें और मूविंग फॉरवर्ड दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द स्टोरी. अभी आपके लिए चैलेंजेस आगे भी और भी हैं. अभी आप स्टार्टअप स्टेज में हैं, आपने इससे नेक्स्ट स्टेज में आना है. तो जिस तरह आपको यहाँ सक्सेस हुई है, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, फंडिंग्स आपको रेस करनी पड़ेगी. हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को इकट्ठा करें, फंडिंग के ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करें ताकि आपको नेक्स्ट स्टेज की फंडिंग्स जो है वो अवेलेबल हों, ताकि आप अपने इन प्रोडक्ट्स को इस अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में नेक्स्ट स्टेज पर ले जा सकें. सो इसमें कोलैबोरेशंस की भी ज़रूरत है. वी आर बिल्डिंग ओवरऑल इनोवेशन इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जिसमें भी अंडरस्टैंड के जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनकी कमी है. वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट स्कीम्स कि किस तरह इन्वेस्टर्स को कनेक्ट किया जाए आपके साथ. उसके अंदर हम डिफरेंट इदारों, HEC है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, खुद गवर्नमेंट की अदर बॉडीज़ हैं, जैसे SECP ने रिसेंटली एक स्टार्टअप्स के लिए कुछ रेगुलेशंस लेके आए हैं. दो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बट इट्स ए स्टार्टिंग पॉइंट. हम अब जाके हमने डिफाइन किया कि स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है. सो वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड विद कोलैबोरेशन हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को और बेहतर करेंगे. इग्नाइट का प्लेटफॉर्म इज़ ओपन फॉर यू. अगर आप उनकी कोई सजेशन है, आप लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, डू लेट अस नो. हम कुछ और कोशिशें भी कर रहे हैं, जैसे इग्नाइट का एक सीड फंड है, हम स्टार्टअप्स को फंड भी करते हैं. लेकिन अभी जो हमारा NIC प्रोग्राम है और जो सीड फंड प्रोग्राम है वो सेपरेटली चलते हैं. बट वी आर प्लानिंग के सीड फंड को और NICs को इकट्ठा किया जाए ताकि जिन प्रोजेक्ट्स को हम फंड करें उनकी मेंटोरिंग भी करा सकें, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल के दौर में डेवलपमेंट इज़ वन एस्पेक्ट, बट इसको मार्केट करना, इसको राइटली पिच करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप लोग जो स्टार्टअप्स निकले हैं वो इग्नाइट के सीड फंड को भी देखें. अगर आप ये समझते हैं कि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स को फर्दर मेच्योर किया जा सकता है तो डू कम टू इग्नाइट. हम आपके जो भी जहाँ पे भी आप खड़े हैं अपने प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने में, वी विल एनालाइज दैट. और फिर जो आपने अपना नेक्स्ट प्लान दिया है फंडिंग का, वी विल ऑल्सो लुक इनटू इट. लेकिन कुछ अच्छी बातें ये हैं कि नियर फ्यूचर में आप कुछ फंड्स देखेंगे जो गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है फॉर स्टार्टअप्स. तो फॉर डिफरेंट स्टेजेस आपको फंडिंग भी अवेलेबल होगी ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स को आगे ले जा सकें. और इन द एंड क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं जो इग्नाइट की टीम, NIC की टीम्स जो काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं. और गवर्नमेंट का अपना प्रोग्राम भी है कि इस इन NICs को एक्सपेंड करना है, बिकॉज इसकी रिकग्निशन और कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी एवरीवन रियलाइजेस. तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आगे चलेगा और इस प्रोग्राम के तहत हम गवर्नमेंट और प्राइवेट एक अच्छी चीज़ ये कि ये बहुत अच्छी एग्जांपल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की. फंड इसको गवर्नमेंट कर रही है, बट वी नो कि गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं एज फार एज ऑपरेशंस आर कंसर्न. तो इसको ऑपरेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है और इसको डिफरेंट फोरम पे अप्रिशिएट भी किया गया. एंड वी ट्राई टू एक्सपेंड और जो आगे भी हमने मूव करना है हम इसी मॉडल पे मूव करेंगे. सो जो लेसन्स लर्न अभी तक हुए हैं उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे. और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह, कराची इज़ अ बिग सिटी, वी एक्सपेक्ट कि यहाँ से बहुत लार्ज नंबर निकलना चाहिए, बहुत सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए, कुछ यूनिकॉर्न्स भी निकलना चाहिए. और इंशाल्लाह ये बिगिनिंग थी. अब नेक्स्ट स्टेज में हम फोकस ये करेंगे कि कैसे अपने स्टार्टअप्स को फोकस करा के इनसे इनको कमर्शियल सक्सेस बनाया जाए और इनको इंडस्ट्री के अंदर बेच किया जाए. With this, I thank you all for best of luck for the graduating cohorts. Inshallah, sky doesn't limit for you. Thank you. Thank you, sir. To begin the conferment of the graduation certificates, I would like to request Syed Aminul Haq, Federal Minister of IT and Telecommunications, to please join us on stage and share his thoughts and honor the graduating startups. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जनाब प्रो वाइस चांसलर साहब, आपकी मौजूदगी, आतिफ साहब आप मौजूद हैं, फराज खान साहब है चांसलर यूनिवर्सिटी के,
जुनैद इमाम, आफ्ताब चौधरी साहब ने हमें वीडियो लिंक भी ज्वाइन किया और डेफिनेटली अदर साहब भी। तो इनफैक्ट इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी हियर और बिलखसूस एनडी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद रहना और फिर NSC सेंटर में मौजूद रहना। मुझे एक बड़ी तादाद जो है वो यंगस्टर की नज़र आ रही है, नौजवानों की नज़र आ रही है और यकीनन जिसे कहते हैं कि नौजवान या यूथ जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान के एसेट है और मिनिस्ट्री ऑफ IT इज डूइंग बेस्ट एफर्ट टू अपलिफ्ट देयर स्किल और उन्हें डिजिटल स्किल में आगे लेकर आना हमारा मोटो भी है कि नौजवानों को आगे लेकर आना। और जिस हिम्मत हौसले के साथ आप काम कर रहे हैं, मैं इत्तफाक की बात है कि आई वेंट टू द इस्लामाबाद में भी गया था, वो मेरा खाली जहाज़ मोबाइल नहीं जहाज़ वाले बिल तो उसको चला रहे हैं और आज आतिफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी बहुत ही बड़ी कंपनी है गालिबन LMKR दोनों ब्रेकिंग माशाल्लाह इनके पास दो कंपनी है और वेल नोन है ऑल ओवर पाकिस्तान और थोड़े से हमारे और इनके मामला भी चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश होगी कि विद इन अ फ्यू वीक नॉट फ्यू वीक बट 1 or 2 month हम उसे सेटल डाउन करेंगे इंशाअल्लाह ताला और इनकी हमें इनकी भी ज़रूरत है कि चीज़ों को जो सरकारी दफातर में जो प्रॉब्लम है, जो मसाइल है, लेकिन डेफिनेटली हमारी प्रायोरिटी शफाफियत भी होगी और उस शफाफियत को देखते हुए जहाँ जहाँ पर होगा हम विल सिट टुगेदर, विल सपोर्ट द थिंग एंड इंशाअल्लाह ताला थिंक विल हैपन। NIC में जो काम हो रहा है मेरा ख्याल है कि डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनाने के हवाले से पीपल आर डूइंग वेरी वेल। एक चीज़ जो मुझे इस्लामाबाद में भी नज़र आई थी और आज यहाँ पे उसके मुकाबले में और भी कम है, वो ख़वातीन का यहाँ पे मौजूद है। मैं समझता हूँ कि when I was in Islamabad, I did remember when they were giving me the presentation, it came to me that attendance and participation of the women were 21% in Islamabad. But unfortunately, while in NIC in Karachi, I mean, मेरा अपना अंदाज़ा है कि 21 से भी कम होगा। मैं बैठे हुए हमारे इग्नाइट के CEO बैठे हुए, मैं उनसे कहूँगा, आतिफ भाई आपसे भी कहूँगा कि क्योंकि मिनिस्टर ऑफ IT की भी पॉलिसी है और मेरा ज़ाती तौर पे जिस तंजीम से ताल्लुक़ हमारा एक मोटो भी है कि ख़वातीन को बाइख्तियार एम्पावरमेंट। तो मैं अर्ज़ करूँगा प्रो वाइस चांसलर साहब, आप मेरा ख्याल आपकी भी हमेशा ख्याल है कि ख़वातीन की तादाद, तो ख़वातीन की तादाद मेरा ख्याल है हम मुस्तक़बिल में आने वाले सालों में बढ़ा सकते हैं, उनको इंकरेज कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं और अपनी टीम का हिस्सा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे के जो 50% जो है वो होना चाहिए। तो लेट्स सेट अ टारगेट कि अगर हमारे पास इफ इट वाज 21% इस्लामाबाद, आई थिंक लोअर है यहाँ पे, अगर 10% या 15% तो वी कैन गो फॉर 25% और मे बी 30%। हम ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करते हैं, ख़वातीन की, बच्चियों की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट का बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि द कंसर्न पीपल विल टेक केयर ऑफ इट एंड फॉर द फ्यूचर इन चीज़ों को मेक श्योर किया जाए। प्राइम मिनिस्टर का विजन और मिनिस्टर ऑफ IT का विजन, और वो विजन है कि हर सूरत में डिजिटल पाकिस्तान, और डिजिटल पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पिलर नंबर 1 है वो एक्सेसिबिलिटी, और हमारी जो मिनिस्टर ऑफ IT है उसकी ख्वाहिश है कि अनइंटरप्टेड एक्सेसिबिलिटी। इस सिलसिले में भी मिनिस्टर ऑफ IT अपना काम कर रही है और बिलखसूस वो इलाके जहाँ पर और जो कोविड-19 आया, हम सब ने देखा कि इस पर घर बैठ के काम करना, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में घर बैठ के काम करने पे इंटरनेट प्रॉब्लम आए, ब्रॉडबैंड की प्रॉब्लम आए, और बिलखसूस वो इलाके जो अंडर सर्व थे, ये अनसर्व इलाके थे, जैसे हमारा इंटीरियर सिंध के कुछ इलाके थे, हमारे बलूचिस्तान के कुछ इलाके थे, हमारे KP के कुछ इलाके थे, और पंजाब के भी कुछ इलाके थे, राजनपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ IT ने इसको टॉप प्रायोरिटी पे लिया और जो उसका अपना डिपार्टमेंट है USFP, यूनिवर्सल सर्विसेज फंड के थ्रू हम
हमने कोशिश की है कि वहाँ पे भी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट की जाए ताकि मेक श्योर किया जाए कि आम नौजवानों को, तालिब इल्मों को और ऑफिस गोइंग जो लोग हैं उनको भी एक्सेसिबिलिटी मिले और वो भी रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते। तो डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन, तो इसके ऊपर एक बेहतर लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें आपसे रिलेटेड है, लेकिन देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से भी रिलेटेड है, तो मैं इससे फायदा उठा रहा हूँ। एक दो चीज़ें आपके एलिमेंट आ कोविड-19 में हम सब ने देखा कि पाकिस्तान माशी तौर पर प्रॉब्लम में मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीना था कि हमारी माशी तौर पे हम नीचे की तरफ बढ़। लेकिन इस कोविड-19 में जहाँ बुरहान थे, जहाँ प्रॉब्लम थी, जहाँ अगर चीज़ों को अक्लमंदी के साथ, होशमंदी के साथ, जहानत के साथ इस्तेमाल किया जाए तो पॉजिटिविटी भी नजर आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। और मैं सिर्फ एक फिगर आपसे शेयर करता हूँ। ऐसे मौके पे जब पूरे पाकिस्तान में इकोनॉमी टुवर्ड डाउनवर्ड थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का जो आईटी एक्सपोर्ट थी, दैट वाज द ओनली डिपार्टमेंट जो 2018-19 का, मैं सिर्फ आपको फिगर बताता हूँ कि 2018-19 में जो हमारी आईटी एक्सपोर्ट हुई थी वो 995 हमें लग रहा था कि शायद हम 2020 में पीछे की तरफ जाए, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की जो पूरी टीम थी इस पर काम करते रही और हमने इसको इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश की। और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने अपने आईटी एक्सपोर्ट को न सिर्फ ये कि अपना उस 995 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर गए, बल्कि हम 1.23 बिलियन तक ले गए। तो हमने इस अपॉर्चुनिटी से, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, हमने इस मौके से फायदा उठाया और चीज़ों को ऊपर लेके गए। तो जैसे जुनैद इमाम ने बड़ी अच्छी बात की कि स्काई इज द लिमिट। हम कोशिश करेंगे, मिलके चलेंगे, जहानत से चलेंगे, स्मार्टनेस से चलेंगे तो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और जो यंग लोग बैठे हुए हैं, ज़हीन लोग हैं, समझदार लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, और फिर एनडी यूनिवर्सिटी अगर यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर इसका बैकग्राउंड देख ले, ओ माय गॉड, इसका बैकग्राउंड, मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेक्स्ट ईयर आप लोग 100 एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल। मतलब हमारे पास तो एनडी यूनिवर्सिटी टैलेंटेड लोग हैं, इतने ज़्यादा टैलेंटेड है। आपने भी मेरा ख्याल आज ही बता रहे थे ना कि आप इसी नेबरहुड में तमाम, और हम आपके पड़ोस कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया है, तो मैं रोज यहाँ से गुजरता हुआ जाता हूँ, पॉइंट के बस पे बैठ के। तो हमने तो देखा है इन तमाम नेबरहुड को, इस एनडी यूनिवर्सिटी को और कराची यूनिवर्सिटी को। मैं कुछ अर्सा शिकागो मेरा, कुछ अर्सा टोरंटो मेरा, तो मुझे मैं शेयर कर रहा हूँ कि व्हाइल लिविंग इन शिकागो मुझे डेट्रॉइट जाने का इत्तेफाक हुआ। तो डेट्रॉइट गया तो मुझे पता लगा कि एनडी की जो स्टूडेंट है वो आपस में कितने मुत्तहिद है और एक दूसरे को हेल्प आउट करने के लिए कितने तैयार रहते हैं। वहाँ पे मेरा ख्याल है कि होंडा की, टोयोटा की और तमाम फैक्ट्री मौजूद है। पता लगा कि उन जगह पर, हर जगह पर एनईडीएन जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन में बैठा हुआ, और कोई भी एनईडी का लगता है कराची से या पाकिस्तान से कोई भी वहाँ पहुँचता है, मेरा हाल है एक हफ्ता उसको फारिग नहीं बैठने देते, वो ठक पकड़ के उससे जॉब लगा देते। तो वो अंदर पाकिस्तानियत भी मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ फिर एनईडी में मेरा ख्याल है कि आजकल के हिसाब से डॉक्टर सुफियान का नाम मेरा ख्याल है बहुत बड़ा है, आईटी सेक्टर में बड़ा काम कर रहे हो, और मेरा ख्याल है कि बड़ा नाम है। डॉक्टर नवेद है, वंडरफुल, बड़े बड़े नाम है। मैं समझता हूँ कि हमारे आने जो नौजवान है, और बल्कि आते हुए दो छोटी सी बात, जब मुझे आसिफ साहब जुनैद इमाम मुझे सर्वे करा रहे थे, तो वाइस चांसलर साहब भी थे पहले साहब, तो सबसे पहले जिससे मुलाकात की वो मेरा ख्याल है धमाका वाइफ आ गया। अब आप इतनी जबरदस्त चीज है कि कम पैसे में ज्यादा चीजें आपको, और नाम इतना है अवामी कि जिसको एक दफा पता लगे वो सारी जिंदगी याद रखे। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि धमाका वाइफ। तो ये भी दैट्स अ वंडरफुल थिंग। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक दफा मुलाकात कर ले तो सारी जिंदगी उसको याद रखे। और प्लस मैं दूसरे लड़के से मिला, गालिबन तीसरी पे था वो, और जिस तरह अमेरिका में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में ट्रिपल अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो आपको से फोन करे, फौरन आती है, वो आपका टायर चेंज कर देते हैं, बैटरी चेंज कर देते हैं, या जो भी प्रॉब्लम। यहाँ पर भी गालिबन आई डिडंट रिमेंबर क्या नाम था,
हुक्म जनाब जी जी हुक्म जनाब। हुक्म जनाब। तो ये दैट इज अ सुपर आसम चीज। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो खवातीन गाड़ियाँ चलाते हैं उनके लिए तो आइडियल है। पता ना खाते चाबी अंदर भूल गई वो आप हमें निकाल के देंगे गाड़ी। इंशाल्लाह ताला अभी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। हम चाहते हैं नौजवान आगे बढ़े, इस मुल्क का साथ है, इस मुल्क के मुस्तकबिल है, एसेट है, सब मिल के चलेंगे, कामयाबी करेंगे। मैं आतिफ से और कहूँगा कि यू हैव अ टन्स ऑफ मनी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने और भी है, ठीक है ना, और भी है, ठीक है, कोई शक नहीं, और भी आप और भी सेंटर को ताकि इन बच्चों के जो ख्वाब है स्टार्टअप है ये आगे बढ़े और फिर हम सब मिलकर चलेंगे तो और बेहतरी होगी। और एज ए मिनिस्टर ऑफ आईटी मैं आपको सपोर्ट करूँगा इस हवाले से, जहाँ जहाँ आपको सपोर्ट चाहिए। इसी तरह और लोग भी हैं जो जो अपने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आगे बढ़े, ट्रस्ट मी वी विल हेल्प यू इस शहर की बेहतरी के लिए, इंशाल्लाह ताला। बात लंबी नहीं करूँगा, ऑल टुगेदर हम सब साथ मिलकर चलेंगे इस शहर की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बना के दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज मेरे इग्नाइट के सीईओ हैं कि हमारी तो ख्वाहिश थी कि यहाँ पर फैसलाबाद में भी हमारे कनेक्शन सेंटर हो, हैदराबाद में भी हो, और कराची चूंकि 3 करोड़ की आबादी है तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि और भी सेंटर होना चाहिए। एक अगर यहाँ पर है, एक मेरा ख्याल किसी और जगह पे भी खोल सकते हैं। लेकिन गुड थिंग ये है कि एनडी यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन करने जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, और उसका हमारा मकसद ये होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएं। तो चूंकि एनडी न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड के अच्छी यूनिवर्सिटी में शुमार होता है। MOIT एमओयू साइन करने जा रही है, उससे तमाम लोगों को, बिल्कुल नौजवानों को, स्टार्टअप को फायदा पहुंचेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से, जो इंशाल्लाह ताला हम अभी फौरन करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह एमओयू साइन करेंगे, इससे मेरा ख्याल है कि चीजें और भी मुस्बत पे आगे की तरफ चलेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। Kindly stay on the stage for the conferment of the graduate certificates. Sayyid Junaid Imam Sahab, aap bhi ajiye, and Adil Sahab, if you could also join us on stage. एक मिनट Sir, please stay. I would now start calling out the startup founders in order for them to get their graduation certificates. So we'll start with Thekedar. Thekedar is a one-stop shop for all your construction and renovation services. If we have Akif with us, he can please join us on stage. Thank you. Thank you. Next up, Nasir and Zaid from Ijad Tech Pop-Up Learning are making creative tools to make STEM learning fun and engaging for middle school children. If we have Nasir and Zaid with us. Nasir is there. सामने दिखेगा।
Excuse me. Okay, done. Thank you. Next we have Afshan and Abdullah from Wash Easy. Wash Easy is an on-demand laundry service. अब यार Thank you. I would request Faisal from MedWorks to please join us on stage. MedWorks manufactures a smartphone-friendly blood sugar level monitor to make diabetes management from home much easier. यहाँ पर देखिएगा सर, वेट करेंगे ऐसे, वेट करिएगा. Thank you, Faisal. We have with us Mr. Khurram Shahzad from Base Edge Technologies. Base Edge is an automated AI writing software for unbiased journalism. सर वेट करेंगे. Thank you. Next up, we have Health Rehber. Health Rehber is connecting nurses, midwives, and physiotherapists to patients at home. We have Dr. Hassan Tahir with us. वेट करिएगा. Thank you, Dr. Hassan. Next up, we have DoSafar. DoSafar provides a safe ride-sharing and booking platform for intercity travels. And Khizr is going to be joining us to represent DoSafar. बच्चे पीछे आया वेट करेंगे ऐसे. Thank you, Ji. Next up, we have Quick Doctor. Quick Doctor is connecting patients with reliable doctors, laboratories, and pharmacies. We have Mr. Salman with us to represent Quick Doctor. वेट करिएगा. GoSpark is an app which provides discounts on your favorite retail outlets. We have with us Mr. Bakas from GoSpark. Okay. He's unable to join us today. Saya Health is one of our startups. Saya Health is mainstreaming mental health solutions across organizations. They offer online therapy sessions. And we have Nase with us representing Saya Health. पूरा फायदा उठाया कोविड-19 में. सर यहाँ देखिएगा, वेट करेंगे. Thank you. Next up, we have Daniel from Mirror Magican. Mirror Magican is an innovative marketing device which offers customizable touchscreen photo booths for brands, events, and more.
Thank you, Daniel, and congratulations. Next up, we have Mr. Ahmed Paracha from STEMers Lab. STEMers Lab provides comprehensive STEM curriculum and tools for educators. वेट करें. Our next graduating startup is IOTA Pakistan. IOTA Pakistan provides plug-and-play device focusing around live vehicle tracking, maintenance, and diagnosis. पिक्चर खींच रहा हूँ. मेरी गलती से खींच लगाना बहुत जरूरी था कि हमारा शहर में कूड़ा उड़ रहा है, पता लगे कि उड़ भी रहा है या टोपी पे ड्रामा चल रहा Our next graduating startup is Encore Pay. It's a fintech startup providing a seamless payment service across a multitude of industries, areas, merchants, and across. We have Mr. Imran Saeed joining us. सब है. जबरदस्त आपके लिए क्लैपिंग हुई है. थैंक यू. Thank you, Imran sir. Next up, I would like to call Salih Khan from Personite. Personite is an e-commerce sales booster for online merchants which works by offering its customers a personalized user experience. थैंक यू. Thank you, Salih. Proceed and Teachers Virtual Lounge provides an e-commerce marketplace for teachers, providing the best resources for advancement in the education industry. We have Mohsin joining us to represent the virtual. Ilaj Asan provides a patient engagement platform for healthcare institutions across the country. If we can have the founder of Ilaj Asan, Munir sir. थैंक यू. Thank you, Munir. Last but not the least, Lingiz provides an IoT-enabled smart bins for waste management. We have Bilal and Shahmir from Lingiz. थैंक यू. Thank you, sir. I would request Mr. Atif Rizwan to please present a memento to Sayyid Aminul Haq. भाई को भाई यार सारा शार्ट चलो आ Sir, and for the rest of the guests, I would request agar aap apna memento distribute kar sakte. I would request CEO of Ignite, Mr. Junaid Imam, to please come on stage and receive his memento. GM Ignite, Mr. Jawad Asfar. Thank you, sir. NED's Pro VC, Dr. Tofair. आपकी संभाल होती है.
Thank you. And last but not the least, once again, Mr. Atif, if you could please receive your memento. Thank you so much for joining us. Thank you, Dr. Adil, for joining us. I would now request our program manager, Syed Asfar Hussain, to kindly come on stage and present us with his closing remarks. Assalamualaikum everyone. Thank you Minister Saab, thank you Atif Saab, thank you Junaid Imam Saab, thank you Doctor, thank you the entire Ignite team जो हमारे मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, जवाद साहब, असफन, उमर, सारे लोग पर्सनल लेवल पे, अदील साहब, all are like family, Vision team. So it's a great journey. 2 साल की जो जर्नी है सर हमारी NIC कराची की, वो एक बड़ी दोस्ती की जर्नी है जिसमें NAD बहुत क्रिटिकली हमारे डॉक्टर साद काजी और डॉक्टर रोजी, सॉरी आपके नाम, किसी के नाम में भूल जाओ तो मसला हो, तो all of us have remained like a family. और thank you to all the players, Ignite, our operating company, LMKT, फैसल साहब की गाइडेंस रहती है, नासिर तनवीर साहब की गाइडेंस रहती है. Everyone has supported us to have this smoothly done. 2 साल के operations. और मैं NIC कराची के सबसे बड़ी thankful हूँ अपनी टीम का, जो कि सारे हमारे 8 से 10 लोग हैं जो एक्टिव हैं, मरजान है, अंदील है, माजिद है. आप लोग अगर आप भी जाएं एक एक माजिद, मरजान, अंदील, आदर्श, सनम, अलीफे, और कौन बचा है हमारे जो भी एब्सेंट थे, शाहजहां in US. So and importantly कुछ थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ. इन स्टार्टअप्स के पास जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो वाली चीज़ें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स से ज़रा हटके होती है. मिसाल के तौर पे हमारे पास अहमद पराचा बैठा हुआ है, ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है. ये बताता है कहाँ अहमद from Stanford, he has made Guinness Book of World Record by Saya Health का नासिर बैठा हुआ है. This company has grown 10 times in COVID. हुकुम जनाब और 2 सफर 3 कंपनीज बजट बना चुका है 1.5 साल में NIC कराची के. इसी तरह NIC कराची के सुपरस्टार्स में डॉक्टर हसन ताहिर आए थे अभी हेल्थ हैवर की. प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, इसको पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना. साली कभी आया था पर्सनाइट का, इसकी पर्सनल स्टोरी इतनी जबरदस्त है कि IBA से पास होने के बाद ही इसने शुरू कर दिया. आज इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, आज इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जॉब सर, he was at a very senior position, he quit his job. तो हमारे लिए बहुत इमोशनल जर्नी भी है, क्योंकि इन लोगों के साथ हम खाते पीते, बैठते उठते, टाइम गुजारते हैं और सारी चीज़ें एक तरफ, बट हमारे लिए ये जो साल गुजरा है इनके साथ, ये हमारे लिए ज़रा इमोशनल टाइम भी था. सलमान बैठा हुआ है कोई डॉक्टर का, ही मूव्ड टू पाकिस्तान जस्ट आउट ऑफ हिज पैशन, कोई डॉक्टर बनाने का. तो इन सबको सबसे ज़्यादा तालियां होनी चाहिए. दे आर द तो NIC कराची ने इस वक्त सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस किए हैं पूरे पाकिस्तान में, 18,000 जॉब्स. 1 बिलियन से ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट रेज कराई है हमारे स्टार्टअप्स में. बाइकिया जो, तो हम यही चाहते हैं कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स रहें और इन सारे स्टार्टअप्स को आप ऐसे इंकरेज करते रहें. तो थैंक यू. सर प्लीज जॉइन अस फॉर जवाब भाई, जुनैद साहब, आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाओ, बहुत पीछे, थोड़ा सा आगे आ जाओ. डन. ओके, यस.
Yes. Thank you. Thank you. So we'll have the MOU between Ministry of IT and NNE. We'll have the arrangements for it, and then we'll join in like 2-3 minutes. Sir, आपसे थोड़ा सा टाइम है. एक सर. Thank you. एक दफा ये तालियां अपने लिए फिर बजा रहे हैं. हमारा